The question is knight, and this is easy level question. Okay, we have given a problem statement. The problem statement is given an 8 into 8 empty chessboard in which a knight is placed at a position x comma y, and your task is to find the number of positions knight can jump into a single move. Okay, rows and columns are numbered through 1 to n, and this is a functional problem, so we just need to complete this function. No need to write the whole code in this problem, and we have to return the number of positions knight can jump into a single move. Okay, here are some sample inputs are given, that is 4 and 5. 4 4 is a x and 5 is a y. Okay, and the expected output is 8, and here are the positions are given, that 8 positions are given. Okay, so in this problem, first we need to calculate the direction vectors. That means we need to find the coordinates of x and y. You can see here I have already find the coordinates of x and y, that is the direction vectors for the 8 into 8 chessboard. First we need to find this to solve this particular problem. Okay, so here the question comes in our mind that how we can calculate these direction vectors. So first let's try to understand how we can calculate these direction vectors. Okay. Okay, so let's suppose this is an 8 into 8 empty chessboard. Okay, and now we have to find the direction vectors or coordinates of x and y that the knight can move in this empty chessboard. Okay, this is rows and this is columns, or this is x and this is y. Okay, so before start, let's see in empty in an chessboard, uh, a knight can move maximum into 8 directions. Knight can move in how many directions? Maximum he can move maximum of 8 directions. Okay, so let's see what is these directions. So let's suppose this is the initial position of a knight. So एक चेस बोर्ड में नाइट मैक्सिमम 8 डायरेक्शंस में मूव कर सकता है. सो अभी हम देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे मूव कर सकता है. Suppose this is the initial position of knight, so knight can move like up, right, this is one direction, then up, left, this is second direction, then down, right, this is third, then down, left, this is fourth, then right, down, this is fifth, then right, up, this is sixth direction, then left, down, this is seventh direction, then left, up, that is eighth direction. So
नाइट जो है ये इन 8 डायरेक्शंस में मूव कर सकता है एक चेस बोर्ड में। या तो वो अप राइट जा सकता है, या फिर अप लेफ्ट, या डाउन डाउन राइट, और डाउन डाउन लेफ्ट, और राइट राइट डाउन, राइट राइट अप, और लेफ्ट लेफ्ट अप, और लेफ्ट लेफ्ट डाउन। ये जो 8 डायरेक्शंस है, ये 8 डायरेक्शंस में नाइट मूव कर सकता है ये एक चेस बोर्ड में। ओके, सो लेट्स try to understand how we can calculate the coordinates. Let's suppose this is x and this is y. Okay, x, or this is also, this is row, and this is y, or this is column. Okay, so here this is the initial position, ये इनिशियल पोजीशन है। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए अभी लेट्स सपोज ये रोज है। तो अगर एक चेस बोर्ड में नाइट अगर अपनी इनिशियल पोजीशन से ऊपर की तरफ जाता है, तो रोज की जो वैल्यू रहेगी वो माइनस में रहेगी। अगर अपनी इनिशियल पोजीशन से वो इनिशियल पोजीशन से वो ऊपर की तरफ जाता है, मतलब रोज में ऊपर की तरफ जाता है, तो रोज की जो वैल्यू रहेगी वो माइनस में रहेगी। और अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन से नीचे की तरफ आता है, तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो प्लस में रहेगी। रोज की वैल्यू प्लस में रहेगी अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन से नीचे की ओर जाता है तो। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉलम्स। फॉर कॉलम्स, अगर नाइट अपनी जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन से राइट की तरफ जाता है, तो लेट्स सपोज this is the initial position of नाइट। वो अगर यहाँ से राइट की तरफ जाता है, इस पोजीशन से वो अगर राइट की तरफ जाता है, तो जो कॉलम्स की वैल्यू है वो प्लस में रहेगी। अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन से राइट की तरफ जाता है, और अगर वो यहाँ से अगर लेफ्ट की तरफ जाता है, नाइट कॉलम्स में लेफ्ट की तरफ जाता है, तो जो कॉलम्स की वैल्यू रहेगी वो माइनस में रहेगी। ओके ओके, सो नाउ लेट्स understand how knight can move in a chessboard. So let's suppose this is the initial position of knight in a chessboard. ये जो है ये इनिशियल पोजीशन है नाइट की। तो हमने यहाँ पे देखा था वो मैक्सिमम 8 डायरेक्शंस में मूव कर सकता है एक चेस बोर्ड में। ओके, सो अभी यहाँ से वो कहाँ पे जाएगा? अप अप राइट, ये फर्स्ट पोजीशन हो गई। देन अप अप लेफ्ट, ये सेकंड पोजीशन हो गई। देन अभी यहाँ से वो नीचे की तरफ डाउन डाउन राइट, ये थर्ड पोजीशन। देन डाउन डाउन लेफ्ट, ये फोर्थ पोजीशन।
देन अभी वो राइट की तरफ, राइट राइट डाउन फिफ्थ पोजीशन, देन राइट राइट अप सिक्स पोजीशन, देन लेफ्ट लेफ्ट डाउन, यहाँ पे जा सकता है वो, देन लेफ्ट लेफ्ट अप, यहाँ पे जा सकता है। तो वो मैक्सिमम 8 डायरेक्शंस में मूव कर सकता है एक चेस बोर्ड में। ओके, सो ये जो पोजीशन है, तो हम समझने की का प्रयास करते हैं कि ये पोजीशंस क्या है, मतलब ये पोजीशंस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की करते हैं हम अभी। ओके, सो फर्स्ट लेट्स ट्राई टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। ओके, सो अभी हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा था, ये जो है ये इनिशियल पोजीशन है नाइट की। अभी ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, इनिशियल पोजीशन से ऊपर है। ओके, सो फर्स्ट रो के लिए देखते हैं। लेट्स सपोज हम आई लेते हैं रोज के लिए, और जे लेते हैं कॉलम्स के लिए। ओके, आई एंड जे, आई रोज के लिए और जे कॉलम्स के लिए। ओके, सो फर्स्ट रोज के लिए देखते हैं, ये जो इनिशियल पोजीशन है वो कहाँ पे है, ये पॉइंट ऊपर की तरफ है। और कितने रोज ऊपर है, सिर्फ ये एक, सिर्फ एक रोज ही ऊपर है। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, अभी रोज की ऊपर है, इसलिए आई अपनी इनिशियल पोजीशन से ऊपर है, तो माइनस रहेगी उसकी वैल्यू। यहाँ पे हमने देखा था रोज के लिए माइनस रहेगी, और कितने रोज ऊपर है, एक रोज ऊपर है, इसलिए आई माइनस वन। ये हो गया इस पॉइंट के रोज के कोऑर्डिनेट्स। अभी हम कॉलम्स के लिए देखेंगे। अभी इनिशियल पोजीशन से ये कहाँ पे है पॉइंट, राइट साइड है। राइट साइड में कितने कॉलम्स राइट साइड में है, एक फर्स्ट और ये सेकंड, दो कॉलम्स राइट में है। तो हम यहाँ पे लेते हैं जे, राइट साइड में है इसलिए जे की वैल्यू, मतलब कॉलम्स की वैल्यू प्लस में रहेगी, जे प्लस, और कितने कॉलम्स राइट में है, दो, तो जे प्लस टू। ये हो गए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अभी हम इस पॉइंट के लिए देखते हैं। अभी ये पॉइंट कहाँ पे है, फर्स्ट रोज के लिए देखते हैं। ये पॉइंट अपनी इनिशियल पोजीशन से नीचे की तरफ है, नीचे है, और कितने रोज नीचे है, एक रोज नीचे है। तो आई, अगर रोज के लिए यहाँ पे हमने देखा था, अगर वो इनिशियल पोजीशन से नीचे की तरफ जाता है तो उसकी वैल्यू रोज की प्लस में रहेगी। तो आई प्लस, और कितने रोज नीचे है, वन। तो ये हो गया रोज के लिए। अभी कॉलम्स के लिए देखते हैं। जे, तो ये पोजीशन कहाँ पे है, इनिशियल पोजीशन से राइट साइड में है, और राइट साइड में है, और कितने कॉलम्स राइट साइड में है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, दो कॉलम्स राइट में है इनिशियल पोजीशन से, राइट साइड में है इसलिए प्लस, और कितने कॉलम्स राइट साइड में है, दो कॉलम्स, तो जे प्लस टू। ये हो गया कॉलम्स के लिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो now let's try to find for this point. ओके, सो पहले रोज के लिए देखते हैं, यानी कि आई के लिए। आई, तो ये इनिशियल पोजीशन से ये भी नीचे की तरफ है, तो आई की वैल्यू प्लस रहेगी। और कितने रोज नीचे है, एक और दो, दो रोज, एक और दो, दो रोज नीचे है, इसलिए आई प्लस, इसकी वैल्यू आएगी आई प्लस टू।
ओके, अभी जे के लिए देखते हैं। ओके, जे के लिए अभी ये पॉइंट जो है इनिशियल पोजीशन से राइट की तरफ ही है, तो जे की वैल्यू भी प्लस में रहेगी। और कितने कॉलम्स राइट साइड में है? सिर्फ ये एक कॉलम ही राइट साइड में है, तो J+1। ये हो गए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो नाउ अभी ये पॉइंट के देखते हैं हम। ओके, सो पहले हम आई के लिए देखते हैं, यानी कि रोज के लिए। अभी ये पॉइंट भी इनिशियल पोजीशन से नीचे की तरफ ही है, तो आई की वैल्यू प्लस में रहेगी। और कितने रोज नीचे है? ये एक रो और ये दूसरा रो, तो I+2। ये हो गया रोज के लिए। अभी जे के लिए देखते हैं, यानी कि कॉलम्स के लिए। तो ये जो पोजीशन है अभी इनिशियल पोजीशन से लेफ्ट साइड में है। ये इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है और ये जो पोजीशन है लेफ्ट साइड में है, तो जे की वैल्यू अभी माइनस में जाएगी। और कितने कॉलम्स लेफ्ट साइड में है? एक कॉलम, तो J-1। ये हो गया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अभी इस पॉइंट के लिए देखते हैं। अभी ये पॉइंट कहाँ पे है? ये भी अब पहले रोज के लिए देखते हैं, यानी कि आई के लिए। तो ये पॉइंट अभी भी नीचे ही है इनिशियल पोजीशन से, तो इसकी वैल्यू आई की प्लस में ही रहेगी। और कितने रोज नीचे है? एक रोज, तो I+1। ये हो गया रोज के लिए। अभी कॉलम्स के लिए देखते हैं। तो जे अभी ये पॉइंट लेफ्ट साइड में है, अपनी इनिशियल पोजीशन से लेफ्ट साइड में है, तो जे की वैल्यू माइनस में रहेगी। और कितने कॉलम्स लेफ्ट साइड में है? एक और दो, तो J-2। ये हो गए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अभी इस पॉइंट के लिए देखते हैं। ओके, सो पहले आई के लिए देखते हैं। ओके, आई अभी ये पॉइंट जो है कहाँ पे है? अभी ऊपर की तरफ है, इनिशियल पोजीशन से ऊपर की तरफ है, तो आई की वैल्यू माइनस में रहेगी। और कितने रोज ऊपर है? एक रोज ऊपर है, तो I-1। ये होगा रोज के लिए। अभी कॉलम्स के लिए देखते हैं, यानी कि जे के लिए। तो ये पॉइंट लेफ्ट साइड में है अपनी इनिशियल पोजीशन से। ओके, तो जे की वैल्यू माइनस में ही रहेगी, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है पॉइंट। J-, कितने कॉलम्स लेफ्ट साइड में है? ये एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो J-2। ये होगा इस पॉइंट के लिए। अभी इस पॉइंट के लिए देखते हैं। तो पहले आई के लिए देखते हैं, आई की वैल्यू। ओके, तो ये पॉइंट अपनी इनिशियल पोजीशन से ऊपर है, तो आई की वैल्यू यानी कि रोज की वैल्यू माइनस में रहेगी। माइनस, और कितने रोज ऊपर है? एक और दो, तो I-2। ये हो गया आई के लिए। अभी जे के लिए देखते हैं, यानी कि कॉलम्स के लिए। ये पॉइंट लेफ्ट साइड में है, अपनी इनिशियल पोजीशन से लेफ्ट साइड में ही है, तो जे की वैल्यू भी माइनस में रहेगी। और कितने कॉलम्स लेफ्ट साइड में है? एक कॉलम्स ही लेफ्ट साइड में है, तो J-1। ये हो गए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अभी ये पॉइंट के लिए देखते हैं। तो पहले आई के लिए देखते हैं। तो आई अभी ये पोजीशन अपनी इनिशियल पोजीशन से ऊपर की तरफ है, तो रोज की वैल्यू यानी कि आई की वैल्यू माइनस में रहेगी। और कितने रोज ऊपर है? ये एक और ये दूसरा रोज, तो I-2। ये हो गया आई के लिए। अभी जे के लिए देखते हैं। ये जो पोजीशन है अभी कहाँ पे है? राइट साइड में है, इनिशियल पोजीशन से राइट साइड में है, तो जे की वैल्यू यहाँ पे प्लस में रहेगी।
और कितने कॉलम्स लेफ्ट राइट साइड में है, एक कॉलम्स सिर्फ, तो j+1। तो ये हो गए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो हमने सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए अभी। ओके, तो अभी ये जो पॉइंट्स है, अभी इनको शॉर्टली हम कैसे लिख सकते हैं, लेट्स सी। ओके, तो ये जो पॉइंट है, ये इसको हम सिंपली लिख सकते हैं ओके, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं, पहले क्या है, i-1 है, तो इसको i-1 की जगह पे इसको हम सिर्फ लिख सकते हैं -1, कॉमा, और j+2 है तो उसको सिर्फ 2 लिख सकते हैं, +2। तो ये हो गए इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने शॉर्टली लिख दिए। ओके, अभी इस पॉइंट के लिए देखते हैं, यहाँ पे है i+1, तो इसको i+1 है तो सिर्फ 1 लिखेंगे, कॉमा, j+2 है तो इसको 2 लिखेंगे। ओके, तो ये हो गए इस पॉइंट के लिए। ओके, अभी देखते हैं इस पॉइंट के लिए। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं i+2 है तो इसको लिख सकते हैं 2, कॉमा, j+1 है तो सिर्फ 1 लिखेंगे। ये हो गए इस पॉइंट के लिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए देखते हैं, i+2 है तो 2 लिखेंगे, कॉमा, -j-1 है तो उसको -1 लिख देंगे। ओके, तो ये हो गए इस पॉइंट के लिए। अभी इस पॉइंट के देखते हैं, यहाँ पे है i+1 तो उसको लिखेंगे 1, कॉमा, j-2 है तो उसके लिखेंगे -2। ये हो गया इसके लिए। और सेम इसके लिए भी लिखेंगे -1, कॉमा, j-2 है तो -2। ओके, नाउ इस पॉइंट के लिए -2 है, i-2, कॉमा, -1। ओके, तो ये इस पॉइंट के लिए हो गया। अभी इसके लिए देखते हैं, यहाँ पे है i-2 तो इसको लिखेंगे -2, कॉमा, j+1 है तो उसके लिखेंगे 1। ओके, ये हो गया इस पॉइंट के लिए। ओके, तो सभी पॉइंट्स के लिए अभी हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए शॉर्ट में। अभी हम इसके x और y के कोऑर्डिनेट सेपरेटली निकालते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट्स ये यहाँ पे 1 है तो 1, कॉमा, ओके, तो ये 1 लिया यहाँ से, फिर नेक्स्ट यहाँ पे 2 है तो 2 लिया, कॉमा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे और 2 है तो 2 लिया, कॉमा, नेक्स्ट यहाँ पे 1 है तो 1 लिया,
कॉमा नेक्स्ट -1 है तो ये -1 कॉमा नेक्स्ट -2 है यहाँ पे तो -2 लिया। ओके और नेक्स्ट यहाँ पे भी माइनस, नेक्स्ट देखते हैं। ओके यहाँ पे भी -2 है तो -2 लिया। नेक्स्ट कॉमा यहाँ पे अभी -1 है तो -1 लिया। ओके तो ये हमने x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। x के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकाल लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए x के कोऑर्डिनेट्स। ओके x के कोऑर्डिनेट्स निकाले। अभी x के कोऑर्डिनेट्स हम चेक कर ले जो हमने ऑलरेडी x के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे वो, और तो इसको कॉपी किया यहाँ से यहाँ पे पेस्ट किया। ओके तो x के कोऑर्डिनेट देखते हैं 1 2 2 1 2 2 1 -1 -2 -2 -1। ओके तो एग्जैक्ट सेम है। अभी y के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं जो हमने निकाले वो करेक्ट है क्या। तो y के कोऑर्डिनेट्स, तो y के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। अभी यहाँ से लिया था हमने तो फर्स्ट y का कोऑर्डिनेट्स है 2, देन यहाँ पे 1 कॉमा नेक्स्ट है -1। ओके -1 नेक्स्ट है ये -2 कॉमा नेक्स्ट है -2 कॉमा देन -1 देन 1 एंड देन लास्ट 2। ये हो गए y के कोऑर्डिनेट्स। तो हम चेक करते हैं ये y के कोऑर्डिनेट्स भी करेक्ट है क्या। तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे, इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे पेस्ट किया तो अभी ये y के कोऑर्डिनेट्स है 2 1 -1 -2 -2 -1 1 and 2। so in this way we can find the coordinates of the x and y in 8x8 chessboard. Okay, so now we have find the coordinates of x and y. Now let's try to write the code for this function. So here we'll write, now we have written the coordinates of x and y. Now we'll take one variable that is integer n equals to 9. Okay, because here we have given constants that is x is less than equals to 8. Instead of instead of 9 you can also take 8 here. Okay, so integer n equals to 9, then
another variable will take integer count and I assign it to 0. We will take this variable to count the moves of knight. Okay, so now we'll write the for loop for integer I equals to 1. I equals to 1, then I is less than n and I plus plus. Okay, and inside the for loop we'll take x and y, will calculate the x and y. So we'll take one a variable that is integer x equals to x plus dx I minus 1. Okay, and for y also we'll do the same. Integer y equals to y plus dy in bracket I minus 1. Okay, now we'll write one condition, if condition, to check if x is greater than equals to 1 and y is greater than equals to 1 and we'll write for x needs to be less than n, so x is less than n and y is also needs to be less than n, y is less than n. Okay, so in after we'll have written if condition, so here we'll also only write, will increment the count, so we'll write the count plus plus. Okay, and at the end this is a return type function, so we need to return the value, so we'll write return count, so it will return the counts. Okay, so we have written the, we have completed the this function. So okay, so we have written, we have the code for this problem, we have completed this function. So here we have given some sample inputs and output. First let's try to understand how this is working. We'll see it on chessboard. Okay, so here x is 4 and y is 5. Okay, so we'll try to understand on the chessboard. So x is 4, so 1 2 3 4. Okay, x is 4, yeah, that means
fourth row and y is fifth. Fourth row and y means column, fifth column. Okay, so the in this given here is the initial position of knight 4 and 5. So here expected output should be 8. So let's see the moves in how many directions knight can move from this direction. Okay, so he can move 1 2 up here, 1 2 here, 1 2 right. This is third. He can move here 4. He can move here fifth. So he can move here 6, 7 and 8. So from this position he can move into these 8 directions. Okay, so the output should be 8. So this is correct. So let's see the next sample input, that is 1 and 1, and the expected output should be 2. Okay, so the row will be first. Okay, and column will also be first. So this is the initial position. Okay, so from this position knight can move like, he can move from this position, he can move like down down and right. This is one direction. Then he can move also in this direction, that is right right and down. So the output here in this output should be 2. He can move from this position, he can move from this initial position, he can move into 2 directions. Okay, so the output should be 2. And here the positions are given, that is 3 2 and 2 3. Okay, 3 2, so 3, that is 3 and 2, this one, and 2 3. So 2 will be the row and 3 will be the column. These are the positions he can move from this position. Okay, so let's try to run our code. So we'll copy the input, we'll give the input in input field. Okay, so here we'll give on the input 4 and 5. Let's try to run our code and let's see what output it is showing. Output should be 8. Okay, so let's see. Okay, output is 8. This is correct. So let's try to run the second test case, that is 1 and 1. We'll give it in input, that is 1 and 1. Let's try to run and let's see what output it is showing. Okay, see, output is showing 2. Okay, so let's try to submit our code and we'll see all the test cases will pass or not. Now the test cases are running. It takes a few minutes. Okay, so let's see, all test cases are passed. Okay, that's it. Thank you for watching the video.